امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے قرآن مجید میں دلائل دیتے ہیں پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپشنل نہیں ہے. یہ ہم نے جب اپنے وجود کی اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی تو اب یہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس پہ سوچ کے اللہ پہ ایمان لے آؤ اور انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو، یا تمہیں ٹائم نہیں ملا تو چلو کل سوچیں گے، پرسوں سوچیں گے، اور بغیر سوچے دنیا سے چلے گئے. نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس پہ غور کر کے ایمان لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے. امن هذا الذي هو جند لكم، اللہ فرماتے ہیں شرافت سے ایمان لے آؤ اور اعمال اختیار کر لو، ورنہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ جب کوئی نہیں ہے تو تمہیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، بتاؤ اگر اللہ رزق روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ یہ جو دنیا کے ماہرین معیشت بیٹھے ہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں، جی اتنی کیلکولیشن اس سال اتنا بجٹ، یہ سب ماہرین معیشت ہوتے ہیں نا، یہ ان کے بجٹ کی کیلکولیشن اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ آسمان سے بارشیں برساتا رہے. جس دن اللہ نے بارش روک لی تو یہ صرف کیلکولیٹر رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ خالی پیلی کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا، بھلا کون ہے جن ماہرین پر تم اتنا اعتماد کرتے ہو نا، حکومت سے بھی ڈرتے ہیں، ماہرین معیشت بھی بتاتے ہیں یہ معیشت کو کنٹرول کرنے یہ فارمولا، اور بھائی سب سے پہلا فارمولا ہے اللہ کو راضی رکھو. رزق کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. آپ کہہ سکتے ہیں نافرمانوں کو تو بہت رزق ملتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رزق روک لوں گا، میں نہیں دوں گا. اللہ نے کہا روک سکتا ہوں میں. کنٹرول کس کا ہے؟ میرا ہے. نہیں روکتا اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے سزا کا دن کون سا رکھا ہے؟ آخرت کا. لیکن عقل مند آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور وہ کلی طور پر رزق نہیں روکتا لیکن جزوی طور پہ روک لیتا ہے. جزوی طور پر، کلی اس لیے نہیں کہ سارے انسانوں کو ہلاک کرنا، یہ اس کی حکمت نہیں ہے، اس کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے. جزوی طور پر رزق روکا جاتا ہے. کس طرح سے؟ فرد واحد سے روک لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسباب رزق کے موجود ہیں پھر بھی جاب لیس ہو گیا، روڈیں ناپتا پھر رہا ہے. کروڑ پتی آدمی تھا، وہ ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے. بڑے بڑے بادشاہ زیرو پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب قذافی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا. دنیا کا عیاش آدمی، کروڑپتی آدمی، پیسہ، حکومت، دولت، اپنی عوام نے پکڑ کے مارا ہے اس کو. اس کا جو بیٹا ہے نا شہزادہ، اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا عیاشی کی زندگی اس کی گزری، دولت، ثروت، دنیا کی ہر چیز، لیکن جو اس کا آخری وقت گزرا ایسی کوٹری میں کہ کھانے کو روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس. یہ اللہ کی عادت ہے، چھینتے ہیں تو چھین لیتے ہیں. اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ. جب چھینتا ہے اللہ تعالیٰ چھیننے پہ آ جائے تو چھین لیتا ہے. تو اور بعض دفعہ اللہ رزق ایسے چھینتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے، مگر آپ سمجھتے تھے اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. کبھی نبی نے اپنے لیے زکات مانگی کسی سے ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی میں غریب ہوں؟ بلکہ فرمایا کہ اپنی آل و اولاد پہ زکات کو حرام کر دیا اپنے اوپر. زکات کا ہم سید پہ زکات نہیں لگتی، سید کو زکات بولو بھائی نہیں دے سکتے، اپنے لیے ناجائز کر دیا. اور اس میں بھی یہ حکمت ہے. ایک حکمت تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنی خاندان کے لیے آر سمجھا، اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ نے زکات کی اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے حلال کر دیتے تو غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا. تو آپ نے اپنی آل اولاد، اپنے رشتہ داروں پر قیامت تک کے لیے زکات کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکات نہیں لے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یہ اپنے لیے ہے. بھائی کوئی امام صاحب چندہ مانگ رہے ہو، ہاں بھائی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں، خود بھی غریب ہوں،
भाई गरीबों का ख्याल किया करो, खास तौर पे वो दीनदार हो तो, खास तौर पे दाढ़ी पकड़ी हो तो बहुत ख्याल किया करो। तो अब उसकी नीयत अपने लिए नहीं भी होगी तो वहम तो आएगा ना, यार लगता है कि आज कल इनके हालात सही नहीं चल रहे, तो असल में तो ये चाह रहे हैं कि खुद दे दो, लेकिन अब बोलते हुए शर्म आ रही है तो गरीबों को आगे करके चंदागिरी हो रही है। चंदागिरी मेरी अपनी लुगत है, गिरी का मतलब कुछ ज्यादा आगे, लिबरल गिरी का मतलब बहुत ज्यादा, फंटर गिरी होते हैं, एक तो फंटर होता है एक फंटर गिरी है। तो कुछ लुगतें हमने भी खुद भी बनाई हुई हैं, डिजाइन की हैं, और कराची में लुगत बनती है। कराची की ये खासियत है कि यहां उर्दू बनती है बाकायदा। कराची वाले अपने हिसाब से नए नए उर्दू के अल्फाज मार्केट में लाते हैं, फिर वो पूरे मुल्क में क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, वो जाते हैं, फिर पूरी दुनिया में जाते हैं। पतली गली, फंटरगिरी और बहुत सारे अल्फाज हैं, मामू सुना है ये, ज्यादा कोई कर रहा है वो मामू, मामू नहीं बन भाई, बोलते हैं ना, अरे तू मामू, और भी है ये। अब ये इसका डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको मामू का, मामू का मतलब अम्मी का भाई। अब मैं अपने छोटे बच्चे को मामू बोलता हूं, वो ना ऐसे गुन्ना बन के आएगा और ऐसी बातें करेगा, मामू भाई तू मेरा मामू नहीं है। तो ये अल्फाज हैं जो कराची में बनते हैं। और अजीब बात आपको बताऊं, उर्दू खालिस और खानदानी सिर्फ कराची की रह गई है, इंडिया से भी खत्म हो रही है। इंडियन की उर्दू अच्छी है, वो मजा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि उसमें हिंदी की आमेजिश इतनी हो रही है कि उनका लबो लहजा आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। मुझे पूरी दुनिया में कोई भी कॉल करे ना तो मैं उसकी उर्दू से इतना अंदाजा लगा देता हूं कि कराची का है या नहीं है, इतना मुझे अंदाजा लग जाता है। तो बशर्ते कि बाय बॉर्न कराची हो, बाहर से आया फिर कराची की, वो फिर मजा नहीं आएगा, वो फिर थोड़ा बहुत दिखाएगा अपना जो है ना कि भाई कुछ ना कुछ टेक्निकल वो घुमाएगा। कुछ पठान ऐसे हैं जो हमने देखा यहीं पैदा हुए, वो यही वाली उर्दू बोल रहे हैं बिल्कुल। तो कुछ पंजाब के लोग यहीं पैदा हुए वो बोल रहे हैं, लेकिन यहां उसके लिए यहां पैदा होना जरूरी है। ये फैसिलिटी अल्लाह ने सिर्फ लोगों को दी है जो यहां पैदा हुए हो, कहीं और पैदा होके आ गए उनको फरिश्ते नहीं मानते, बोलते हैं नहीं भाई, वो फरिश्ता बोलते हैं नहीं, वो बात नहीं आ रही, वो मजा नहीं आ रहा। तो अच्छा खैर, क्या है यार, क्या ये बयान चल रहा है, दरसे कुरान है भाई ये है। वो जो मैं बात क्या कर रहा था, परिंदों की बात तो थी, आगे क्या हो रहा था, रिस्क की बात चली थी। हाँ, मैं यस कर रहा था, देखो बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था, 40 दिन, मगर इसके बावजूद तबीयत में क्या है, गिना। कभी अपनी उम्मत पर ज़कात को क्या, अपनी औलाद पे ज़कात को क्या कर दिया, हराम। खुद भी ज़कात नहीं ली कभी। घर में आते अम्मी आयशा से पूछते कुछ खाने को है। हम जब घर में आते हैं तो ये नहीं पूछते कुछ खाने को, हम कहते हैं क्या खाने को है। हमें पता होता है खाने को तो होगा, हमारी मर्जी का भी है या नहीं है। जबकि नबी आके क्या पूछते थे, कुछ है भी या नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बसा औकात आप रोजे की नियत कर लेते थे कि भाई शाम तक वैसे ही कुछ नहीं खाना, तो सवाब क्यों जाया करो, भाई रोजे की नियत कर लो, आज रोजा है। लेकिन आपकी तबीयत में गिना कितना, सोच कितनी बुलंद, पूरी दुनिया पे अल्लाह के दीन को गालिब करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गुर्बत में वक्त गुजारा, मगर अपने आप को क्या समझा, गनी। तो बाज़ दफा अल्लाह रिस्क ऐसे देते हैं, जेब में धेला नहीं है, लेकिन इंसान अपने आप को समझता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद मैं हूं। दिल खुश ऐसे हो जाता है जैसे सब कुछ है मेरे पास। ये बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम मिन अमसक रिज़्क़ा, भला कौन है जो तुमसे रिस्क रोक, जो तुम्हें रिस्क दे अगर अल्लाह अपने रिस्क को रोक ले। इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, फरमाइए ये निरे धोखे में पड़े हुए हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया, अम्मन हाज़ल्लज़ी, वो क्या है भाई आयत, अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तकीम। कुरान जब दलाइल के अंबार लगाता है ना, कुरान ने इस सूरह मुल्क में क्या कहा, जमीन को बिछोना बना दिया उसने तुम्हारे लिए। कैसे सूटे, बिछोने का मतलब क्या है, इंसान के लिए इससे ज्यादा सूटेबल जगह नहीं हो सकती। इसकी कशिश भी इतनी है कि ना आप जमीन में धंसना शुरू होते हो, ना इतने हल्के के हवा में। चांद पे आप चले जाओ ना, चांद पे आप एक कदम ऊपर रखोगे तो ऊपर से बिल्डिंग्स
अभी बैंक की बिल्डिंग से घूम के वापस आओगे नीचे, ठीक है ना, ऊपर ही जा रहे हो, फिर बहुत हल्के हो जाओगे आप। और अगर सूरज पे चले जाओ, बिलफर सूरज में आग ना हो और जमीन हो, तो आपका वजन इतना बढ़ जाएगा कि आपके गुर्दे फेफड़े निकल के सारे जमीन से चिपक जाएंगे। आप होगे खड़े हुए मगर लगोगे बैठे हुए, सही है ना, होगे खड़े हुए मगर लगोगे। हमारे एक दोस्त से बहुत छोटा कद था, हमने कहा यार तुम्हारे साथ कोई अजीब वाकया हुआ? कह रहे यार मेरे साथ रोजाना अजीब वाकयात होते हैं। कह रहे मैं पासपोर्ट ऑफिस की लाइन में लगा हुआ था, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा, तो मैं फिर चीखा, मैंने कहा मुझे कब देगा? उसने कहा पहले खड़ा तो हो भाई बैठा हुआ क्यों है? तो वो खुद अपने बारे में बड़े दिलचस्प वाकया सुना रहे थे। तो हम चांद सूरज पे चले जाएं तो गड़ते चले जाएंगे। तो बिछोना का मतलब, जैसे माँ बच्चे के लिए बिछोना बिछाती है हर लिहाज से, कभी मच्छरों से बचने का भी इंतजाम, टेम्परेचर भी सही हो, पंखे के बिल्कुल नीचे ना हो कि नजला ही हो जाए, बिल्कुल इतना किनारे पे भी ना हो, हर लिहाज से अल्लाह ने जमीन को इंसान के लिए सूटेबल बनाया है। फिर इसी में सब कुछ रख दिया, इसी से सूरज पकाता है पानी को, समंदर के पानी को पका के हम पर बरसाता है, वही पानी जमीन में जाता है, उसी से टमाटर पैदा हो रहे हैं, उसी से आलू प्याज पैदा हो रहे हैं, वही गश्त करता हुआ दोबारा समंदर में जाता है, वही आलू प्याज टमाटर हमारे जिस्म से घूम फिर के जमीन में जाके फिर खाद बन के फिर वही पूरा सेटअप अल्लाह ने बना के यहां पर हमें पूरा प्रोजेक्ट लगा के दे दिया है, ठीक है ना। ये अल्लाह ने दलील दी, परिंदों की दलील दी, हर तरह के दलाइल देने के बाद अल्लाह कहते हैं आफा मई यमशी, बस ये आखिरी आयत पढ़ के दर्स खत्म करता हूं, भला जो आदमी इन दलाइल को देखकर सीधे रास्ते पे चल रहा है, एक ट्रैक पे चल रहा है, वो सीधे रास्ते पे चलने वाला है, अम्मई यमशी मुकिब्बन अला वजही, या वो शख्स जो अपने चेहरे के बल उल्टा खड़ा हुआ हो और चेहरे के बल उल्टे रास्ते पे चल रहा हो। यानी अल्लाह ने काफिर की मिसाल दी है बिल्कुल ही उल्टा, ठीक है ना। एक तो उल्टा ये होता है कि आप यूं जाने के बजाय यूं जा रहे हो, एक है यूं भी जा रहे हो और जा भी उल्टे, टांगे ऊपर है सर नीचे। तो ये अल्लाह इनकी, इन लिबरल लोगों की या इन काफिरों की जो कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, उनकी मिसाल दे रहे हैं कि ये थोड़े उल्टे नहीं है, ये बहुत ज्यादा उल्टे हैं, ठीक है ना। तभी मैं कहता हूं किसी लिबरल आदमी को ना, जो मजहब को ना मानता हो, मेरे सामने 5 मिनट के लिए लाइव कैमरा चला के बिठा दो, मैं उससे सिर्फ इतना पूछूंगा कि सही और गलत की डेफिनेशन बताओ क्या है। कयामत आ जाएगी, वो ये नहीं बता सकता कि सही क्या है, और अल्लाह की कसम उठा के बोल रहा हूं कयामत तक वो कमबख्त ये नहीं बता सकेगा कि सही की डेफिनेशन क्या है और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है ना, रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है, वो ये नहीं बता सकेगा। तो जो कमबख्त ये ना बता सकता हो कि सही क्या है, वो चलेगा कैसे? ये कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और कल्चर तो सही भी होता है, और ये कल्चर के बारे में नहीं बता सकते कि ये कल्चर सही है कि गलत है।